Welcome to VLearn. This is session 14 part 2 of basic math. So in today's session we are going to discuss about the three-dimensional geometry concepts. So here first of all we are going to discuss about equation of a straight line in a space. That means here we are going to discuss the equations of the line, how we can create them in a space. Then after that we are going to discuss the shortest distance between two lines. That means अगर दो लाइन हैं उनके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. So first of all let us start our session with the topic that is equation of a straight line in space. So a line in space is completely determined once we know one of its points and its direction. कोई भी लाइन स्पेस में आप कम्प्लीटली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपको पता हो कि उसका पॉइंट्स क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है. अगर आपको वहाँ पर एक भी उसका पॉइंट पता है, एक कोऑर्डिनेट भी पता है और उसका डायरेक्शन पता है, तो आप उसको कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं. सो वी शैल यूज वेक्टर्स to measure direction and find equation of straight line in space. हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेक्टर्स का यूज़ करेंगे डायरेक्शन को मेजर करने के लिए. यहाँ पर हम इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेट लाइंस की जो कि हम स्पेस में ड्रॉ करते हैं. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस with the help of some examples. Like here we have a question like find the equations of the line passing through the points 1 minus 1 2 1 minus 1 and minus 2 and parallel to the vector 3i minus 2j plus 5k. हमें यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की जो कि पास हो रही है एक पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 माइनस 1 और माइनस 2 और वो लाइन पैरेलल है एक वेक्टर के जो कि हमारे पास अवेलेबल है एंड दैट इज 3i minus 2j plus 5k. Now let us discuss the solution part here. So here we have a equals to I minus j minus 2k. हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर a है उसकी वैल्यू है यूनिट वेक्टर ऑफ I minus j minus 2k. Similarly we have another vector b and it is represented as 3i minus 2j plus 5k. Now therefore the vector equation of the line is, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर इक्वेशन होगी लाइन की वो इस टाइप से होगी. सो इट विल बी इक्वल टू r इक्वल टू i माइनस j माइनस 2k प्लस t इंटू 3i minus 2j plus 5k. So this is how we are going to represent the vector equation of a line. After that we can see here that r is the position vector of any point p x y z on the line. यहाँ पर जो r है वो एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट p का जो कि एक लाइन पर लाई करता है. सो हेयर वी हैव xi प्लस yj प्लस zk. सो दिस विल बी इक्वल्स टू i माइनस j माइनस 2k प्लस t इंटू 3i माइनस 2j प्लस 5k. सो दिस होल विल बी इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया i j और k को हम सेपरेट करेंगे दोनों वेक्टर्स में. सो वी आर गोइंग टू गेट 1 plus 3t then I minus 1 plus 2t j plus minus 2 plus 5t then vector k. So this is how we are going to represent these. After that we are going to calculate the values of the x, y and z. So here we have x equals to 1 plus 3t, y will be equals to 1 minus 2t and z will be equals to minus 2 plus 5t. Now after that by getting these values we are going to eliminate t. अब यहाँ पर हमें t को eliminate करना होगा. So we are going to get x minus 1 upon 3 equals to y plus 1 upon minus 2 and z plus 2 upon 5. So now let us discuss some another example of vector. Now here we have a question that is find the vector and Cartesian equation of the line passing through the points minus 2 0 3
माइनस टू। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू, हम इन्हें इमेजिन कर सकते हैं, या ए और बी हम इन्हें इमेजिन कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव टू फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस। कार्टेशियन इक्वेशंस और वेक्टर इक्वेशंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है लाइन की, जो कि पास होती है ये जो हमारे पास दो अवेलेबल पॉइंट्स हैं उनसे। सो इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट, हियर वी हैव वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू माइनस टू आई प्लस थ्री के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस टू के। So here we are going to represent b minus a as in the following manner. b से a को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हम उनका डिफरेंस इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक here we have b minus a will be equals to 5i plus 5j minus 5k. So here the vector equation of a line passing through two points with position vectors is given by, यहाँ पर अगर वेक्टर इक्वेशन की अगर हम बात करें जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक वी हैव r इक्वल्स टू a प्लस टी इंटू बी माइनस a, देन r विल बी इक्वल्स टू माइनस टू आई प्लस थ्री के, एंड t इंटू फाइव आई प्लस फाइव जे माइनस फाइव के. After that, here if r is the position vector of the point p x y z, then we have, यहाँ पर r क्या है, अगर एक पोजीशन वेक्टर है हमारे पास और पॉइंट p है x y z, then we have x i plus y j plus z k. So this will be equal to minus 2i plus 3k plus t into 5i plus 5j minus 5k. यहाँ पर हमने तीनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया. आफ्टर दैट हमने वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया अलग अलग वेक्टर्स का. i को हम i के साथ रखेंगे, j को हम j के साथ रखेंगे. सो हेयर वी हैव माइनस टू प्लस फाइव टी प्लस फाइव टी जे प्लस थ्री माइनस फाइव टी इंटू वैक्टर k. सो हेयर वी हैव x इक्वल्स टू माइनस टू प्लस फाइव टी. अगर हम कंपेयर करें अब इक्वेशंस को अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, दैट मीन्स राइट हैंड साइड की यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स माइनस टू प्लस फाइव टी, इसको हम x के साथ कंपेयर करें तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस टू प्लस फाइव टी. सिमिलरली y इक्वल्स टू फाइव टी एंड z इक्वल्स टू थ्री माइनस फाइव टी. अब यहाँ पर हमें t को एलिमिनेट करना होगा, तो t को एलिमिनेट करने के बाद हम पॉइंट्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सम अनदर एग्जांपल. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है and it is x plus 3 upon 4. So this will be equals to y minus 2 upon 5. It will be equals to z plus 5 upon 1. So here we have to find the vector equation of the line. यहाँ पर हमें line की vector equation find out करनी है. So here we have a solution. So comparing the given equation with the standard form, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा जहाँ से हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ और ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हेयर वी हैव दैट रिलेशन दैट इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए. दिस विल बी इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू z minus z1 upon c. So after comparing these values we are going to get x1 equals to minus 3. अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू माइनस थ्री मिलेगी. सिमिलरली इस इक्वेशन को हम अगर क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो y1 की वैल्यू 2 मिलेगी. सिमिलरली z1 इक्वल्स टू माइनस फाइव, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 and at last c equals to 1. Now after finding out these values, the required line passes through the points minus 3, 2 and minus 5, and this will be parallel to the vector 4i plus 5yj plus k. यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए ये पैरेलल होंगे हमारे एक वेक्टर के जो कि हमारे पास अवेलेबल है, एंड दैट इज 4i plus 5yj plus k. So after getting all these values, the equation of the line in vector form is r equals to minus 3i plus 5j minus 6k plus t इंटू 4i plus 5j plus k. तो ये हमारे पास
वेक्टर इक्वेशन मिलेगी एक लाइन की। नाउ लेट अस डिस्कस some more examples. So here we have to calculate the angle between the lines. हम दो लाइन्स के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So here we have a question that is find the angle between the lines r equals to 2i plus 3j minus 4k plus t into I minus 2j plus 2k. Similarly, the other vector is r equals to 3i minus 5k plus s into 3i minus 2j plus 6k. So let us discuss its solution part here. So here vector b is equals to I minus 2j plus 2k and b equals to 3i minus 2j plus 6k. So here if theta is the angle between the two lines, अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें कि जो थीटा है वो दो लाइन्स के बीच का एंगल है, then cos theta will be equal to b into b dash, that is the another line, divided by magnitude of b, then magnitude of b dash. So it will be I minus 2j plus 2k into 3i minus 2j plus 6k divided by under root 1 plus 4 plus 4 अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36. इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, उनके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड किया. आफ्टर दैट हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर अब पुट करेंगे. सो हियर वी हैव 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 19 divided by 21, and hence we can say that theta will be equals to cos inverse 19 upon 21. Now let us discuss the shortest distance between two lines. अगर दो लाइन्स के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. We are going to discuss that aspect here. So first of all let us discuss some points and definition. So first of all let us discuss the definition part. So here two non-coplanar lines are called skew lines if they are neither parallel nor intersecting. अगर यहाँ पर हम दो नॉन कोप्लेनर लाइन्स की बात करें तो वो स्क्यू लाइन्स तब कहलाती हैं जब वो पैरेलल नहीं होती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ना ही वो पैरेलल होंगी और ना ही इंटरसेक्ट करेंगी. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज द जॉइन ऑफ अ पॉइंट इन वन लाइन विथ one point on the other so that the length of the segment so obtained is the smallest. यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं दो लाइन्स के बीच में इस तरीके से कि जो पहली लाइन का जॉइंट है वो दूसरी लाइन पर आएगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पर और वहाँ से उसकी हम स्मॉलेस्ट लेंथ कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. सो क्लियरली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज 0 and the shortest distance between two parallel lines is the distance by which the two lines are separated. अगर यहाँ पर अब दो लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर उनके बीच में कोई गैप नहीं है, डिफरेंस नहीं है, स्पेस नहीं है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए उनके बीच में स्पेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 होगा. सिमिलरली अगर पैरेलल लाइन्स की बात करें तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा जो उनको सेपरेट कर रहा है, जो उनके बीच में डिफरेंस है. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स. यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है लाइन्स के बीच में. सो हियर वी हैव r इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 2k एंड प्लस t इंटू माइनस आई प्लस 2j प्लस k. यहाँ पर हमने i के साथ जो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है. सबसे पहले दो वेक्टर्स हैं हमारे पास r के. सो द सेकंड वेक्टर हियर इज i माइनस 7j प्लस 2k देन प्लस i प्लस 3j माइनस 2k. सो हेयर नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. ये जो वेक्टर्स हैं हमारे पास दो लाइन वेक्टर्स हैं, इनके बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो कंपेयरिंग विद द इक्वेशंस r इक्वल टू a प्लस 3b.
आर इक्वल टू ए प्लस टी बी के साथ अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें और आर इक्वल टू सी प्लस टी डी इनके साथ अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू हैव ए इक्वल टू 3i+4j-2k। ये हमें पहला मिलेगा, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी और जो बी की वैल्यू है वो होगी -i+2j+k। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा। सिमिलरली c will be equal to i-7j+2k and d will be equal to i+3j-2k। अब यहाँ पर वो फाइंड आउट करने के बाद ए बी और सी डी हमें चारों वेक्टर से शो किए। अब हम कैलकुलेट करेंगे a माइनस सी, so it will be equal to 2i-11j। now we are going to find here the cross product of vector b and vector d, so this will be equal to I vector I, j and k, that is -1 2 1 1 3 2। हमने यहाँ पे वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ताकि हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें। सो हियर वी हैव their product will be equal to i+3j-5k, so we have their cross product, that is b cross product d will be equal to under root 1 + 9 + 25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 35। so we can say that the shortest distance will be equal to mod of c minus a into b cross product d divided by magnitude of cross product between b and d, so this will be equal to -2i minus 11j into I plus 3j minus 5k divided by अंडर रूट 35। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 35। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाले 35 को, न्यूमरेटर वाले 35 को अंडर रूट 35 से डिवाइड किया तो हमें मिला अंडर रूट 35। so this is the shortest distance between two lines। now at the end of this session here is an exercise for you, you can try out these questions for yourself। so here the first question is, find the shortest distance between the two lines whose vector equations are r equals to I minus j plus t into 2i plus k। similarly the other vector is, the other line is 2i minus j plus s into I plus j minus k। now let us discuss the second question of the exercise। so here the second question is, find the shortest distance between the two lines। यहाँ पर shortest distance calculate करना है हमें, जो कि हमारे पास दो lines given है। so here we have first one, that is r equals to 1 minus t into I plus t minus 2 into j plus 3 minus 2t into k। similarly the other line will be equal to r equals to s plus 1 into I plus 2s minus 1 into j plus 2s plus 1 into k। so this is the end of today's session, thank you।